Hello friends, welcome to problem solution of accounts of sale under installment system. This question was asked in Saurashtra University examination in April 2018. Friends, before we move further, आप ये वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी रहे. So friends, hope you have gone through this question. Here as per question, Pooja Limited has purchased a machine on installment system from Jai Limited. So here Pooja Limited is buyer and Jai Limited is seller. Here date of transaction is 1st January 15. Now if we see the other information, so here cash price is already available for the asset for the machine. Then the amount paid on 1st January 15 means the amount paid at the time of contract is 5,40,000. We can also say it as a down payment. After that 3 yearly installments are available, 31st December 15, December 16 and December 17. Next information is about the rate of interest, that is 10% per annum. So here interest rate is available. Next information is about depreciation. Depreciation is 10% on cash price. It means here straight line method of depreciation is available. Here we are required to prepare in the books of Pooja, means in the books of purchaser, a machine account as well as interest suspense account. Okay friends, let's start the solution of this question. Friends, in this question cash price is available, rate of interest is available and amount of all installments are also available. So we can directly move for the table showing calculation of interest. तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे ये टेबल से. द फर्स्ट कॉलम शोज द डेट, सेकंड कॉलम शोज द अमाउंट पेड, third column shows interest in the amount paid, fourth column is cash price in the amount paid and the last column is the balance of cash price. नाउ यहाँ जो मशीन है उसकी कैश प्राइस हमें ऑलरेडी दे दी गई है, दैट इज 14,40,000. तो कंसीडरिंग दैट हम आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट पेमेंट होगा 1st January 15 को. द पेड अमाउंट इज 5,40,000. अब फ्रेंड्स ये जो डेट है, ये जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट है बिकॉज ट्रांजेक्शन के दिन ही ये पेमेंट होता है. सो इट डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा. तो ये जो पूरी अमाउंट है 5,40,000 विल कंसीडर एज कैश प्राइस. तो जो मशीन की कैश प्राइस है 40,40,000, उसमें से 5,40,000 हम डिडक्ट करेंगे तो जो कैश प्राइस बैलेंस आएगी दैट इज 9 लाख रुपीज. Now we are going for the first installment, that is on 31st December 2015. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है 4,50,000 का. Now remember these installment includes interest, but how to calculate this interest? तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी पहले की कैश बैलेंस है 9 लाख रुपीज, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है. हियर इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम. तो 9 लाख इंटू 10% यानी कि इंटरेस्ट हमें मिलेगा 90,000 रुपीज. तो 4,50,000 माइनस 90,000 यानी रिमेनिंग जो 3,60,000 हमें मिले दैट इज द कैश प्राइस पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस थी 9 लाख, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 3,60,000. तो नाउ बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इज 5,40,000 बिफोर सेकेंड इंस्टॉलमेंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन December 16. तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है उसकी अमाउंट है 3,24,000, दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट. तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले की जो बैलेंस है कैश प्राइस उसके ऊपर 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो 5,40,000 इंटू 10% यानी इंटरेस्ट होगा 54,000 रुपीज. तो 324,000 माइनस 54,000, तो जो बैलेंस आएगी 2,70,000, दैट इज कैश प्राइस.
तो अब बाकी बैलेंस तो 5,40,000 माइनस 2,70,000, तो बाकी बैलेंस रहेगी बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,70,000. Now we are going for the third installment, that is on December 2017. Amount of third installment is 2,97,000. अब उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट होगा बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कैश बैलेंस है, यानी कि 2,70,000 इंटू 10% इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट यहाँ होगा पूरे साल का 27,000. तो 297,000 माइनस 27,000, यानी अब अमाउंट जो रहेगी वो है 2,70,000. तो वी कैन नोटिस हियर कि बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कैश बैलेंस बाकी थी वो भी उतनी ही थी, 2,70,000. नाउ वी आर पेइंग द सेम अमाउंट, सो देयर इज नो कैश बैलेंस नाउ. तो अब कोई कैश बैलेंस बची नहीं है. तो अब ये टोटल से हम जान सकते हैं कि द टोटल अमाउंट पेड टू द वेंडर इज 16,11,000. उसके अंदर जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो है 1,71,000 और जो कैश प्राइस है वो है 14,40,000 रुपीज. Okay friends, now we are going for the calculation of depreciation. Here as per the information given, depreciation we are required to charge at the rate of 10% per annum on cash price. यहाँ cash price के ऊपर 10% depreciation count करना है. यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड हमें यूज करनी है. तो फॉर्मूला ऐसा आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश प्राइस ऑफ मशीन इनटू 10%. तो कैश प्राइस इज अवेलेबल 14,40,000 इंटू 10%, यानी डेप्रीशिएशन पर एनम होगा यहाँ पे 1,44,000. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड अकाउंट. तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ पूजा लिमिटेड. तो ये असेट अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर होगा. तो सबसे पहले शुरू होगा डेबिट साइड से. डेबिट साइड वी विल पुट द डेट ऑफ परचेज, दैट इज 1 जनवरी 15. यहाँ पे हम वेंडर अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे, दैट इज जयश्री अकाउंट. और जो अमाउंट आएगी, रिमेंबर यहाँ पे हमें कैश प्राइस लिखनी है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज 14,40,000 कैश प्राइस. अब हम पहले साल के एंड में क्रेडिट जाएंगे 31 दिसंबर 15 और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट करेंगे वहां पे. तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 1,44,000. नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. तो 14,40,000 दोनों तरफ हम टोटल रख देंगे और जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड, दैट इज द बैलेंस कैरिड डाउन विच इज 12,96,000. अब ये जो बैलेंस थी वो नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड एज ए ओपनिंग बैलेंस हम दिखाएंगे 12,96,000. और दूसरे साल भी वही प्रोसीजर होगी. क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 16, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी 1,44,000. अब दूसरा साल हम क्लोज करेंगे 12,96,000 दोनों तरफ लिखेंगे और उसमें से 144 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें दूसरे साल की बैलेंस मिलेगी, दैट इज 11,52,000. This balance again we will show debit side as a opening balance of third year 1st January 17, 11,52,000. अब तीसरे साल में भी क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लिखेंगे 144,000 और टोटल में यह अमाउंट लिखेंगे 11,52,000 दोनों तरफ और बैलेंस ढूंढेंगे. द बैलेंस इज 10,08,000 रुपीज. यहाँ हमें 3 साल का अकाउंट ही बनाना है. तो ये जो बैलेंस है वो सामने डेबिट साइड जस्ट शो कर देंगे उठा के. तो 1 जनवरी 18 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,08,000 रुपीज. This is how we can prepare the machine account in the books of Pooja Limited. Okay friends, now we are going for the second required account, that is interest suspense account in the books of Pooja Limited. तो
इस तरह से ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर होगा, शुरू होगा डेबिट साइड से 1 जनवरी 15 द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम डेबिट करेंगे वेंडर अकाउंट दैट इज जयश्रीज अकाउंट, और अमाउंट यहाँ जो आएगी दैट इज द टोटल ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। हमने जो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन का टेबल बनाया था उसमें इंटरेस्ट कॉलम का जो टोटल था, यानी तीनों इंस्टॉलमेंट के जो सारा इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा 1,71,000। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्रेडिट 31 दिसंबर 15। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, और जो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 90,000 वो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। नाउ वी विल पुट टोटल ऑफ 171,000 बोथ साइड, और पहले साल की जो बैलेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ बैलेंस इज 81,000, so balance carried down 81,000. The same balance will show debit side on 1st January 16 as a balance brought down 81,000. अब दूसरे साल भी हम क्रेडिट साइड जाएंगे 31 दिसंबर 16, और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो हम इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 54,000 इंटरेस्ट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो अब दूसरा साल भी हम क्लोज करेंगे, टोटल है 81,000 जो दोनों तरफ रखेंगे हम। तो यहाँ क्रेडिट साइड हमें बैलेंस मिलेगा दैट इज 27,000 बैलेंस कैरिड डाउन, जो फिर से हम डेबिट साइड 1 जनवरी 17 को दिखाएंगे एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड ईयर, तो क्रेडिट साइड हम जाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो इतना ही होगा जितनी बैलेंस थी, यानी कि दोनों तरफ जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दिस अकाउंट विल क्लोज आफ्टर थर्ड ईयर।